Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम इस दिन में जो भी important current affairs news थे, based on that we're going to see some important questions, right? So I hope you have watched the previous video, otherwise this video will not be helpful for you. Let's start with the first question of the day. The Khiladi excavation कौन से state में है? And the answer is yes, it is Tamil Nadu. बहुत सारे 18,000 artifacts मिले हैं which tell कि ये संगम पीरियड 800 BC इतना पुराना है, right? That's what we saw in today's article. Further, current director of National Mission on Monuments and Antiquities. तो ये जो खिलाड़ी एक्सकवेशन के जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसको अभी शिफ्ट किया है as the director. Now who was that guy? He is K. Amarnath Ramakrishnan. तो इसका आंसर है D. Alright, let's proceed to the next question. Archaeological Survey of India was formed by whom? ये फॉर्म किया था 1861 में and it was formed by Alexander Cunningham. Therefore, the answer to this is C. Let's proceed to the next question. The Strait of Hormuz is located between. It is located between Persian Gulf, the Gulf of Persia, and the Gulf of Oman. या Arabian Sea भी बोल सकते हैं हम इसको. So that is the strait. So कौन से दो countries यहाँ पे के बीच में आता है Strait of Hormuz? एक है ईरान and दूसरा है ओमान. Iran and Oman. ठीक है? So Persia, which is the old name for Iran, Persia and Oman. Let's proceed to the next question. Which country is the world's largest crude oil exporter? Okay, so now question याद रखना, largest crude oil exporter कहाँ है? This is mainly Saudi Arabia. सबसे ज़्यादा Saudi Arabia export करता है. Therefore, answer is C. Next is which country is currently India's largest? So read the question properly. ये specifically India के बारे में पूछा है तो India सबसे ज़्यादा किससे लेता है oil? This is with regard to Russia. और यहाँ पे हमको याद रखना है according to SIPRI report, Russia से हम military equipments भी सबसे ज़्यादा लेते हैं. So military हो या oil हो, हमारा साथी है Russia. ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम. Let's proceed to the next question. The New START Treaty is an agreement between which two countries? ये agreement जो है 2010 में आया और ये अग्रीमेंट है बिटवीन यूएस एंड रशिया. आज के न्यूज आर्टिकल में हमने देखा है. इनफैक्ट ये एक्सपायर होगा अगले साल यानी कि 2026. दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू स्टार्ट ट्रीटी किससे रिलेटेड है? सो इफ यू गॉन थ्रू द आर्टिकल, हमने देखा ये न्यूक्लियर आर्म्स को रिड्यूस करने में है. सो द आंसर टू दिस इज न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन. आंसर इज बी. Let's proceed to the next question. Which country currently possesses the most nuclear warheads? Currently it is Russia जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है. इंडिया का भी डेटा हमने देखा, it's 180, whereas पाकिस्तान had 170, चाइना had about 600, काफी ज्यादा है. रशिया के पास तो बहुत है, ठीक है, अराउंड इन 5,000 प्लस. ऑफ कोर्स नेक्स्ट वन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? ये हमने देखा था नेतन्याहू's एंड गेम में. यस, इट इज बेंजामिन नेतन्याहू. आंसर टू दिस इज बी. कैपिटल क्या है ईरान की? नाउ दीज आर द जनरल क्वेश्चंस यू कैन बी एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जाम. सो यस, द कैपिटल इज तेहरान, which has also been affected by the Israel missiles. Further, which of the following countries does not share a land border with Iran? So this is yesterday मैंने बताया था, आपको पूरा मैप दिखाया था और मैंने याद करवाया था कि कौन से कंट्रीज ईरान को सराउंड करते हैं. सो वी सॉ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया यहाँ पे नहीं होता. पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट बट नॉट सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इस साइड है, इट इज नॉट हैविंग एन बॉर्डर विद ईरान. तो इसका आंसर है सी. Saudi Arabia does not share a border. Further, which of the following countries does not share a border with Israel? पूछा है. So we had Lebanon, Syria, Egypt and Jordan. Right? Turkey does not share a border. तो इसका आंसर है Turkey. Turkey नहीं शेयर करता है इजराइल के साथ. Let's see the next question. Which of the following countries borders both Iran and Israel? So क्या कोई कंट्री है जो बॉर्डर करता है दोनों इजराइल और ईरान को? Iraq does not border Israel. Syria borders Israel, does not border Iran. Yemen also no. The answer is none of the above. ठीक है, कोई भी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर नहीं करती. येमेन दोनों के साथ नहीं शेयर करता. सो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. सो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो दैट इज व्हाट माय मेजर एम इज, टू इंक्लूड एज मच एज ट्रिकी इजी क्वेश्चंस एज वेल.
अरावली रेंज, आज के आर्टिकल में देखा था रेस्टोरेशन के बारे में, एंड दैट एज आई सेड इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। आंसर इसका है बी। नाउ यहाँ पे एक क्विज है आपके लिए, यंगेस्ट, हाईएस्ट और वेटेस्ट माउंटेन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, द यंगेस्ट, हाईएस्ट एंड वेटेस्ट माउंटेन इन द इंडिया कौन सा है, ये आपको ये कमेंट सेक्शन में देना है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। हमने देखा आज के आर्टिकल में ग्रीन इज रिगार्ड टू एनवायरमेंट, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं ही इज भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्होंने जोधपुर में कॉन्फ्रेंस दिया था और रिवाइज किया था ग्रीन इंडियन मिशन को। Let's proceed to the next question. Which country conferred its highest civilian order, the Grand Cross of the Order of Makarios III, on Prime Minister Narendra Modi? We have seen this in yesterday's article. So these are some bonus questions based on yesterday's news discussion. ये जो है, it is Cyprus ने दिया था, Cyprus ने दिया था, तो हमने कल के आर्टिकल में ये देखा, आंसर इज बी। Doklam is a region at the tri-junction of which countries? Again a bonus question from yesterday. Doklam जो है 3 कंट्रीज, इंडिया, भूटान एंड चाइना, यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे स्टैंड ऑफ भी हुआ था 2017 में, जहाँ पे चाइना ने एक ब्रिज बनाया था डोकलाम पे, तो भूटान बुरा मान गया और हम भूटान के दोस्त, तो हमने भूटान को सपोर्ट किया था। सो इंडिया, भूटान, चाइना इज एट द ट्राई जंक्शन फॉर डोकलाम। 19th क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये हमने कल देखा था, 2013 में ये आइडिया आया, 2023 में ये बना था, 24 में ये क्रिस्टलाइज हुआ, ये प्रॉपरली बना, हेडक्वार्टर्स इसका दिल्ली है, ये सब हमने कल देखा था। और अभी एक नए प्रेसिडेंट चुने हैं एंड दैट वाज यूनानिमसली डिसाइडेड भूपेंद्र यादव, हु इज आल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डायरेक्टर जनरल कौन है IBCA? ये एक IFS ऑफिसर है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है, हु इज SP यादव। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द IBCA, वह हम 7 बिल्लियों को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विच आर दे? टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा। I'm repeating it once again. Tiger, lion, snow leopard, leopard, that's cheetah, jaguar and puma. ठीक है, तो ये आपके हैं 7 cats that you are preserving. So that's all with regard to today's 20 GK questions. I hope you have got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.